آج کا دن بڑا خوبصورت ہے. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. یہی وہ دن ہے جو خداوند کا ہے. ہاللویا. خداوند کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق ہم خداوند کے گھر میں اس کی ہیکل میں موجود ہیں. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنے ایک خاندان کے لیے جنہوں نے خوبصورت کرٹنز جو ہیں وہ اس ہیکل کو گفٹ کیے ہیں. خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پریز جیسس. کہ آج بھی خدا کا شکر ہے کہ لوگ خدا کے کلیسیا ہیکل سے گھر سے محبت رکھتے ہیں. ہاللویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بڑا خوبصورت ٹاپک جو خداوند نے مجھے دیا ہے، نوح کی کشتی کے بارے میں. نوح، اس کی راست بازی اور اس کی کشتی. دا آرک آف نوحا. نوح کی کشتی. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ کتاب مقدس کو تلاوت کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نوح گہری تاریکی کے اندر تھا. اس کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ بستے تھے جو تاریکی کے اندر تھے، گناہوں کے اندر تھے، بدروحوں کے اندر تھے. کس طرح وچ کرافٹ کا قبضہ ہوگا، بدروحوں کا قبضہ ہوگا، کہ پوری دنیا جو ہے وہ گناہوں کے اندر پڑی ہے. پوری دنیا جو ہے روئے زمین پر صرف ایک شخص راست باز ہے اور اس کا نام نوح ہے، اور آدم سے 10ویں نسل ہے. یعنی آدم کی 10ویں پشت کے اندر نوح راست باز، اس کو مرد راست باز کہا گیا ہے. The man of righteousness. راست بازی کا مرد جو راستی کے ساتھ چلتا ہے. اگرچہ پوری دنیا تاریکی کے اندر پڑی ہے، لیکن یہ واحد شخص خدا کے ساتھ چل رہا ہے. ہاللویا. آپ کہتے ہیں جی میرے گھر میں ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے کنٹری کا ماحول ایسا ہے، یہاں پر ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میرے ملک نے، میرے گھر نے میری برکت کو روک رکھا ہے، میرے گردا گرد لوگوں کے ایٹماسفیئر جو وہ بناتے ہیں اس کی وجہ سے میں خدا کے حضور راست باز نہیں بن پا رہا، چند ایک لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، تو پھر آج نوح کی کہانی پر غور کریں. کیونکہ نوح کے گردا گرد پوری دنیا میں ناراست لوگ تھے جو برائی کرتے ہیں، جو گناہ کے اندر. بائبل مقدس میں ایک حوالہ تلاوت سنیے گا. کتاب مقدس میں 6 باب ہے، پیدائش کی کتاب 6 باب، اس کی نامی آیت سے. کتاب مقدس میں جن کے پاس خداوند کا زندگی بخش کلام ہے وہ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 6 the verse number 9. کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس کے 3 بیٹے سیم، حام اور یافت پیدا ہوئے. پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی. اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. کتاب مقدس میں آگے چل کر لکھا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ
तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। आमीन। मेरे अजीजों, ये वो जगह है जहां पर खुदावंद ने नूह से कलाम किया, और खुदा ने नूह से कहा है कि मेरे हजूर तू ही रास्तबाज है। यानी नूह तमाम रोए जमीन में मर्द रास्तबाज है, नूह रास्तबाज है। पूरी दुनिया बुराई के अंदर पड़ी हुई है, पूरी दुनिया जो है वो गुनाहों के अंदर पड़ी हुई है, पूरी दुनिया जो है वो बदरूहों के अंदर पड़ी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है नूह ही रास्तबाज है। खुदा ने नूह से कलाम किया और उससे क्या कहा? खुदा ने उससे कहा कि देख पूरी जमीन पर जुल्म हो रहा है, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, किस कदर बुराई होगी। मैं ये समझता हूं कि शायद आज के दौर की ही तरह, लेकिन खुदा ने कोसे कज़ा के साथ एक अहद बांधा। आगे चलकर उस पर भी बात करेंगे, जिसकी वजह से अब उस तरह से आफात नहीं आ रही, क्योंकि खुदा ने कहा कि इसके बाद मैं बनी नौ इंसान को इस तरह के तूफान से नहीं मारूंगा, जानदारों को इस तरह से नहीं मारूंगा। खुदा रोया, खुदा गमगीन हुआ सब कुछ देखकर। लेकिन मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में नूह के दौर के अंदर जब वो कश्ती बनाने लगा, जब खुदा ने उससे कलाम किया, उसकी उम्र 480 बरस थी। 480 बरस। आज अगर आज के दौर में, तब चूंकि उम्र जो है वो ज्यादा थी, आज के दौर का तकरीबन 80 साल का एक बूढ़ा शख्स तसव्वुर कर सकते हैं, 70 से 80 साल। इन सालों में लोग भला क्या कहते हैं कि अब तो बस खत्म हो चुका है सब कुछ, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, अब मैं खुदावंद के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं दुनिया के लिए अब कुछ नहीं कर सकता, ना अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये बूढ़ा शख्स जो 480 बरस का है, जब खुदावंद ने इससे कलाम किया कि तू कश्ती बना, जुल्म बढ़ चुका है, इसने कश्ती बनाना शुरू की। और लिखा है कि 20 साल इसने जब कश्ती बनाई ना, यानी जब 500 साल का हुआ तो उससे 3 बेटे पैदा हो गए, सीम, हाम और याफत। शादी इसकी पहले हो चुकी है, इसका कोई भी बच्चा नहीं है उससे पहले। जब खुदावंद के मंसूबा को जिंदगी में लिया, फिर खुदा ने औलाद जैसी बरकत दी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो खुदा के साथ चलने लगा तो क्या हुआ, उसके बेटे पैदा हुए। पहले खुदा कलाम कर रहा है कि तू रास्तबाज है, फिर उसके बेटे पैदा हुए हैं। फिर बाइबल मुकद्दस में आगे चलकर लिखा है, बाइबल मुकद्दस में आगे चलकर लिखा है 3 बेटे पैदा हुए। अब इनके पैदा होने के 100 साल तक ये कश्ती बना रहे, इसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। उनते औलाद हो गई, अब तो बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं काम नहीं कर सकता। और हिस्ट्री ये कहती है कि वो कश्ती जो उसने बनाई थी, उसके बच्चों ने और उन्होंने मिलकर वो 50 से 60 साल के अंदर तमीर हो चुकी थी, उसका काम मुकम्मल हो चुका था। अब उसके बाद वो जो है उस कश्ती को भूल चुके थे। हिस्ट्री ये कहती है कि देवर जस्ट पड़ी हुई है, दोबारा से उसको ठीक किया गया। हिस्ट्री ये कहती है, क्योंकि नूह ने कश्ती जो बनाई थी 50 से 60 साल में बना दी थी, अगरचे लोग उसके खिलाफ थे। आगे चलकर एक हवाला पढ़िएगा, किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, यहां पर वाज़ेह आ जाएगा। 7वां बाब है
किताब मुकद्दस में 7वें बाब की पहली आयत, और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। आमीन। इट इज शोइंग कि ये बहुत अरसा हो चुका है कि कश्ती तमीर है, और इस आयत के मुताबिक बहुत सारे मुसन्निफीन ये कहते हैं कि कश्ती 50-60 साल में या 70 साल में उसने तैयार कर ली थी। उसके बाद वो अपने कामों में फिर भी रास्तबाज था, वो खुदा के साथ चलता रहा। He was righteous person। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद ने उससे भला क्या कहा। तूफान आने को है, 120 साल, 480 से 120, 600 साल की उम्र में जब था। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है आगे चल के, नूह जब 600 बरस का था तब खुदा ने कहा कश्ती में जा। ये नहीं कहा, खुदा ने क्या कहा, नूह तू अपने घराने के साथ कश्ती में आ। इसका मतलब है कि खुदा पहले कश्ती च मौजूद है। हालेलुया। खुदा ने कहा कि तू कश्ती च आ। अगर हम यहाँ पे तो किसी से कहेंगे कि भाई चर्च में आओ, क्योंकि हम चर्च में मौजूद हैं। अगर हम ही यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम किसी को कैसे दावत है। एक घर है, घर के अंदर शख्स खुद मौजूद नहीं है तो किसी को कैसे बुला सकता है कि वो खुद मौजूद नहीं है। यहाँ पर खुदा ने ये कहा, खुदावंद ने नूह से कहा कि तो अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, और मैंने तुझी को अपने सामने जमाना में रास्तबाज देखा है। हालेलुया। खुदा देखता है आप जो कुछ इस रोए जमीन पर करते हैं, खुदा उसको देखता है। आप शायद कहते हैं कि हम तो छुप छुपा कर बुराई करते हैं, स्टिल वॉचिंग यू। जहां पर कोई इंसान नहीं देखता वो वहां से भी आपको स्कैन कर सकता है। हालेलुया। आप बुराई के बारे में सिर्फ सोचते हैं और वो स्कैन हो जाती है। खुदावंद ये चाहता है उसमें भरना शुरू करें। कई दफा हम क्या करते हैं कि खुदावंद के कहने के मुताबिक आगाज कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को राह में छोड़ देते हैं। बाइबल शुरू करेंगे 2023 में, चर्च में लेकर आएंगे 2023 में, यू आर नॉट टेकिंग विद यू। बहुत सारे लोग हैं, मैंने 3-4 साल से मैं कह रहा हूं कि अपनी अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, साथ लेकर आए। इट्स शोइंग दैट कि खुदावंद से आप कितनी मोहब्बत रखते हैं। बाइबल शुरू करेंगे इस साल में। ये स्टोरी जो है हर एक की नजर से गुजरी है। जब भी कोई शख्स ये कहता ना मैंने बाइबल शुरू करनी है, तो वो पैदाइश से ही शुरू करता है। पैदाइश में 15-20 दिन तो रूटीन ठीक होती है, तो 15-20 दिन में ये आप 6ठे और 7वें बाब में से गुजर जाते हैं। आप में से बहुत सारे जिन्होंने इस स्टोरी को बार बार पढ़ा है, सॉरी, आगे चलकर रूटीन जो है वो खराब हो जाती है। ऐसे ही है, कोई काम याद आ गया, कुछ ना कुछ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं, खुदावंद में दुआ करने का, खुदावंद के हुजूर झुकने का, चर्च में आने का इरादा करते हैं, उस पर कायम रहे। नूह ने इरादा किया था, वो हमारी तरह एक शख्स था, हमारी तरह का इंसान था। उसमें कुछ अलग नहीं था, उसमें कुछ अलग चीज नहीं थी। हाँ, अलग उसको बनाया गया दुनिया में से उसके कामों ने। आप तब तक नहीं बदलते जब तक आपकी आदतें नहीं बदलती। आप तब तक बरकत नहीं पा सकते जब तक आप अपनी आदत को तब्दील नहीं करेंगे। यानी आपका फ्यूचर जो है, आपका मुस्तकबिल आपकी आदतों पर ही मुनहसर है। जो कुछ आप करते हैं, आपके काम आपके मुस्तकबिल को जाहिर करते हैं। और जो कुछ आपने अभी तक किया ना, उसकी वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं। आपने फैसला किया कि मैं चर्च में जाया करूंगा, यू आर कमिंग। आप
खुदावंद के हजूर झुकने के लिए इरादा करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको उस तरह से नहीं लेते कि ठीक है खुदावंद के घर में आ रहे हैं, दिल किया आ गए, दिल किया कोई बात नहीं। लेकिन ये झुकना खुदावंद के हजूर झुकना नहीं है। नूह मर्द रास्तबाज था, वो खुदा के साथ साथ चलता था। He was taking step with God। खुदा कितनी स्पीड से चलता होगा। मैं उस स्पीड की बात नहीं कर रहा कि किसी के साथ। कई दफा क्या होता है कि आप खानदान की सूरत में घर से बाहर निकलते हैं तो कई इन्नी गेट हो जाता, ओ भैया रुक जाओ या सानू भी नाल ले ला। कई दफा हस्बैंड ऐसा करते हैं, बेगम नू सारे बच्चे चका के नाल के पंड कपड़ियां दे विच चका के ते पिछे पिछे पिंडां च वो पिछे पिछे तो बंदा हो गया जे। तो कई दफा ऐसा होता है। लिखा है कि नूह खुदा के साथ साथ चलता था, वो क्रॉस नहीं कर रहा था, वो अपनी हिकमत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था कि मैं तो तेज चल सकना, मैं इससे ज्यादा अच्छे काम कर सकता हूँ। ये चलने की बात, उस तरह चलने की बात नहीं हो रही जो मैं कह रहा हूँ, ये रास्ते में चलने की बात हो रही है। हालेलुया। आप खुदा के साथ अगर चलना चाहते हैं तो आपको अपने कामों में संजीदा होना है, आपको संजीदगी को इख्तियार करना है। अब जरूरत है कि हम अच्छी डाइट लें। उसके लिए क्या जरूरी है कि हम पहले इस बात को समझें कि हमने जो कुछ करना है वो खुदावंद के लिए करना है। बहुत सारे ऐसे काम आप कर जाते हैं जिनका खुदावंद से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारी आप ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका खुदावंद से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आप खुदा के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे आप उसमें बढ़ ही नहीं सकते। रिलेशनशिप में आना क्या है? जब कोई मियाँ बीवी में प्यार होता है ना, मोहब्बत होती है, दे टॉक्स अ लॉट, वो बातें करते हैं, दे प्लान टुगेदर, वो मनसूबाबंदी करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, शेयर विद ईच अनदर। और ये शेयरिंग आप दुआ में कर सकते हैं खुदा के साथ, अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर कोई मसीही की जिंदगी दुआया जिंदगी नहीं है तो वो कभी खुदा से बरकतें हासिल नहीं कर सकता। जब तक आप खुदा में कायम नहीं होंगे खुदा आप में कायम नहीं होगा। नूह खुदा के साथ साथ चल रहा था। मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम आज मुख्तसर वक्त में धीमी आवाज़ में खुदा के कलाम को सीखें। आवाज़ उसी की है, गला मेरा है जो वो इस्तेमाल करा, लेकिन मेरा गला ख़राब है। हालेलुया। मेरे लिए भी दुआ किया करें। नूह 1 साल और 17 दिन कश्ती में रहा था। कितने? 1 साल और 17 दिन। बारिश कितने दिन हुई थी? 40 दिन 40 रात। दरवाजा कितने दिन खुला रहा था? 7 दिन दरवाजा खुला रहा। 7 days the door was open। 7 दिन में कोई भी नहीं गया, ये दरवाजा खुला है ना। They were watching। खुदा ने जब उससे कहा कि तू कश्ती में आ, खुदा पहले वहां पर मौजूद है। अब वो चला गया। लिखा है कि जो हराम जानवर हैं वो 2-2, बाकियों के साथ साथ वो लेकर तो चल। अब 7 दिन दरवाजा खुला है और दरवाजे के अंदर कौन जा रहा है? जानवर। इंसान आ ही नहीं रहे। धूप लगी हुई है, बड़ा सोना मौसम है। अगर मैं कहूं कि भाई धूप है, आपको नजर आ रही है, मैं कहूं कि भाई तूफान आने वाला, यस्सु आने वाला, आप कहेंगे यस्सु के आने की निशानियां ये कि सूरज लाल हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, एटमॉस्फेयर इस तरह का होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। तो भाई वो तो अभी नजर नहीं आ रहा। तूफान की अलामत क्या होती हैं? पहले बादल बनते हैं। जब नूह कह रहा था तो लोग ऐसे ही सोच रहे थे, बादल बना ना कोई समझ आए या धुप दे विच थोड़ा ना हिल गया हुआ है। कई दफा लोग आपको कहते हैं और भाई और क्या हो गया, आप खुदा के साथ चल रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? तो ना बहुते ही कोई हाजी बन गया, रास्तबाज बन गया, चंगा भला होना सा है, तेन हूँ बहुता ही रब रब याद आ गया, इधर आया काम कर, इधर आया ये कर ले। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपके साथ ऐसी टॉकिंग करते हैं।
और कोई गल नहीं, है काम कर लै, आ छोटी जी बुराई है कर लै, और कोई गल नहीं, आ दो तू भी ला लै, ए उतों मंगाई आ, ये वहां से लिया। आप में से बहुत सारे लोग हैं, नूह के साथ भी ऐसा हो रहा था। नूह ऐसे ही नहीं था, नूह के साथ भी ऐसा हो रहा है। जब खुदावंद ने कहा कश्ती में, तो 7 दिन दरवाजा खुला रहा। यहां पर यीशु मसीह भी नजर आते हैं। यीशु मसीह वो दरवाजा है जो आज तक खुला है। नूह दी कश्ती का दरवाजा तो 7 दिन खुला सी ना, लेकिन यीशु मसीह वो आर्क है जिसका दरवाजा आपकी जिंदगी की सांसों तक खुला हुआ है। हालेलुया। जब तक नस्ल इंसानी इस जहां में मौजूद है, उनका वजूद है, यीशु मसीह वो दरवाजा है जो उनके लिए खुला हुआ है, क्योंकि वो निजात की राह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी दरवाजा हूं। नूह के दरवाजे में से सिर्फ 8 जाने इंसानी 8 जाने उस दरवाजे में से दाखिल हुई। हो सकता कुछ अंदर आंदे और हुजदा कर, ओ भा बह रहे थे इन्ने दिन, ओए तो सारे खानदान नूं लैके बह रहे, मुंडे भी कहंदे होणगे, लो जी साडा बुजुर्ग ते सानू लैके इत्थे बह रहा। कई दफा कहते हो हमारा बुजुर्ग तो घर में भाई दुआ लिए बह रहा, राती हुंदी है तो कहंदे ने दुआ। नूह सरबराह था अपने खानदान का, सरबराह था। सरबराह का काम क्या है? अपने घराने को लेकर खुदा की हजूरी में उसकी मर्जी के मुताबिक बैठ जाए। खुदा ने कहा कश्ती में आ और बैठ जा। उन्होंने वहां पर उकताए नहीं कि 7 दिन हो गए ने तूफान ते आंदा नहीं पिया ते सानू इत्थे बाहरे। हो सकता उसके बेटे उसको कहते हो। आज के बच्चे भी ऐसे ही है ना। नूह मर्दे रास्तबाज है, उसके बच्चे उसकी रास्तबाजी के वसीला से बचे हैं। उसके बच्चों के बारे में नहीं लिखा कि दे वर राइचियस। ओदे खानदान के बारे में नहीं लिखा कि नूह का खानदान जो है वो रास्तबाज था। नूह के बारे में लिखा, उसकी बीवी के बारे में भी नहीं लिखा। उस शख्स सरबराह की रास्तबाजी के बायस घराना बच गया। तू ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। शायद वो बातें कर, तो हो सकता है वो रास्तबाज भी हो, बाइबल में नहीं लिखा। मेरे पास अब भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। कईयों के लिए 30 साल उम्र बाकी है, कईयों की 10 साल, कईयों की पता 50 साल जो छोटे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर शख्स 80 साल से ज्यादा जिए तो जिए यीशु वास्ते। हालेलुया। आपने कमाली नहीं कि कुड़ियां ब्याह लिए, मुंडे ब्याह लिए, आ बड़ा माड़ा होया, आदि कुड़ी रह गई सी ते टुर गई। आवे एदा कौन ही होन भाई, उसका खुदा है। आपको ये फिक्र करने के लिए यहां पर नहीं भेजा गया कि ओदा कौन जी होनो रह गया जी। आप ये फिक्र करें कि वहां पर पहुंचेंगे कि भी नहीं, इस जहां से निकलकर जाना कहां पे, उस बात की फिक्र। नूह कश्ती के अंदर था, यीशु भी दरवाजा है। एक हवाला मेरे साथ देखेगा, यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 10वां बाब 9वीं आयत। यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 10वां बाब 9वीं आयत। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझ में दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। और रोटी भी खाएगा, चारा पाएगा, गुर्बत जाएगी। जेड़ा कोई इस दरवाजे से एंटर होएगा उसकी गुर्बत जाती रहेगी, जो कोई इस दरवाजे से एंटर होगा उसकी बीमारी जाती रहेगी। और वो दरवाजा यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप उस दरवाजे में एंटर हो चुके हैं। लिखा है कोई आया जाया करेगा दरवाजे में, तो कई तो रूटीन ही बनाई है, गिरजे आके यीशु च, बाहर जाके शैतान च, आया जाया करेगा।
आप यीशु मसीह में आते हैं तो दोनों को लेकर आए। ये वो दरवाजा है। तब तो लोग एंटर नहीं हो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह वो दरवाजा है जो आपकी जिंदगी तक खुला हुआ है। इसलिए उस दरवाजे में से एंटर होकर हमेशा की जिंदगी में चले जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ये चाहता है। हम कहते तो हैं कि वी हैव फेथ इन जीसस, लेकिन थ्रू आवर ओबीडियंस, हमारी कमिटमेंट से हम जाहिर ही नहीं करते। फरमाबरदारी तो पता ही नहीं चलता कैसी औरतें ईमान रखने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मैं करता हूं वो भी करे। यीशु मसीह क्या करते थे? उसने मोहब्बत रखी। उसने कहा ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है। These are equal things, तीनों बराबर है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। हालेलुया। भाई भाई से कीना रख रहा है, मोहब्बत रखे। मैं एक घर में बैठा हुआ था, भाई यहाँ पर बैठा, उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा भाई साहब, एक बदन के अंदर ना बदरूही लश्कर इकट्ठा रह लेता है। इकट्ठा लश्कर किसी एक शख्स के अंदर था, यीशु मसीह ने भी निकाला, सुवरों के अंदर डाला तो वो समेट ना सके और पानी में डूब कर मर गए। यीशु मसीह ने उस लश्कर को निकाला जो एक बदन च सारे बड़े सुकून ना बैठे, कोई हुरामुकी नहीं हो रही होते। उन्होंने कहा एक कमरे में आप खुदा की खिदमत करने वालों को बिठाएं, जरा बिठा कर दिखाएं। कितना मुश्किल काम है ना, इत्तेफाक ही नहीं है। वो किसी कमरे दे विच कोई 10 पादरी बहा दियो अलग अलग फिरके दे, अद्धे घंटे बाद दरवाजा खोलो तो सिर पाटे होंगे। सही बात है। उनको पता ही नहीं है कि मसीह की मोहब्बत क्या। अगर कोई आपसे कहता ना कि साडा पादरी बड़ा, तो मान जाया करो। क्या करो, साडा पादरी छोटा है, कोई गल नहीं, साडा पादरी बड़ा है। क्योंकि जो अपने आप को छोटा करता है ना, वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रेज जीसस। चक के तालियां ना बजाया करो, जोरदार तालियां। प्रेज जीसस। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नूह की कुल उम्र 950 बरस थी। आज के दौर में जो उम्र का मियाद है वो 80-90 बरस है, 80 साल। इससे ज़्यादा भी अब जी रहे हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपनी कलीसिया के लिए हमेशा उम्र की दराजी को मांगता हूँ। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। किताब मुकद्दस में से एक हवाला हम तिलावत सुनेंगे। 7वां बाब है पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 10वीं आयत से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ, यानी वो 7 दिन जिस दिन दरवाज़ा खुला हुआ था, 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी ज़मीन पर आ गया और नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। आमीन। 40 दिन 40 रात बारिश हुई। इस सोच के साथ बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आसमान के पानी और ज़मीन के पानी को, पैदाइश के पहले बाब को जब आप पढ़ते हैं, दूसरे बाब को, वहाँ पे लिखा है खुदा ने जुदा किया आसमान के पानी को, ज़मीन के पानी को, पानियों को जुदा कर दिया। अब जड़ियाँ खिड़कियाँ खुलियाँ ने आसमान की, दैट वॉज नॉट जस्ट रेन, वो सिर्फ बारिश नहीं थी। पहले लिखा है कि आसमान की खिड़कियां खुल गई, जमीन के सोते फूट निकले। जमीन के सोते क्या है? जमीन फटी, पानी ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे चश्मे फूटते हैं ना, ऐसे सोते फूट निकले और ये बहुत बहुत बड़ी जो है वो क्रैक्स बन गए थे जमीन पर। और ये जो क्रैक्स बने उसमें से पानी निकला। आसमान से कैसे पानी आया? इससे पहले कि बारिश हो,
ये क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। क्विक्स, अर्थक्विक आए हैं, यहाँ पर भूचाल आए जमीन पर बहुत ज्यादा, जिसने जमीन को हिला दिया, और उस भूचाल की वजह से क्रैक्स पड़े और फिर पानी सतह जमीन पर से ऊपर उठने लगा। और आसमान की खिड़कियां, जो पानी खुदा ने पैदाइश पहले दूसरे बाब में आसमान पर रखा, वो पानी जमीन पर आना शुरू हो गया खिड़कियों की सूरत में। ट्यूबवेल्स का आप देखते हैं प्रेशर कितना होता है, ये बहुत ह्यूज टाइप जो है वो आसमान की खिड़कियां जब खुली तो आसमान से ऐसे पानी जमीन पर आया। पहाड़ों की चोटियां, माउंट एवरेस्ट भी डूब गया था, ये केटू की पहाड़ी ये भी डूब गई थी, ये सारा पहाड़ी सिलसिला जो नेपाल के अंदर है वो भी सारा डूब चुका था। पूरी जमीन की सतह के ऊपर पानी था। और ये कैसे था? जैसे पहले था कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती है, तो इस टाइम नूह दी कश्ती पानी की सतह पर जुम्बश कर रही। हालेलुया। अंदर कौन है? खुदा खुद मौजूद है। कश्ती कैसे डूब सकती है? जब आपकी कश्तियों के अंदर यीशु मसीह आ जाएगा। जब यीशु मसीह आपकी कश्तियों के अंदर है, आपकी कश्ती डूब ही नहीं सकती। चाहे पानी पहाड़ों की चोटियों तक हो, चाहे मुश्किल जो है वो पूरी दुनिया को लपेट में ले। कोरोना जैसी वबा आई, लोग मर रहे थे और ईमानदार खादिम लोग आते हाथ रख के दुआ कर रहे सन। हालेलुया। कोई पादरी नहीं मरा। दुनिया में मुश्किल आ सकती है, लेकिन मेरे अजीजों, अगर यीशु मसीह आपकी कश्ती के अंदर है तो यीशु ले आना किन्ने कश्ती के अंदर? सरबराहों ने, माँ ने, बाप ने, आपने अपनी अपनी कश्तियों के अंदर, खानदानों के अंदर यीशु मसीह को लेकर आना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा फिर आप बरकत पाते। कई दफा अब ये वक्त नहीं है कि आप अपने बच्चों से कहें कि बच्चा तू इंज करके चर्च चला जा। अब ये वक्त नहीं है कि बेटा चर्च में चला जा। आप उंगली पकड़कर बच्चे को चर्च में लेकर आए। अब ये वक्त है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप जो बच्चे आप 80% आपके कामों से सीखते हैं और 20% आपकी बातों से। ਇਹਦਾ मतलब है जो कुछ तुसी घर च कर दे जे, लड़ाई झगड़ा बच्चे उतो भी सीख रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं बच्चे उससे भी सीख रहे हैं। दे आर लर्निंग। इसलिए आप क्या भर रहे हैं ये नूह के ऊपर डिपेंड था कि उसके बच्चे बचे या ना। मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे मौलम उल्मा अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उसके बच्चे भी रास्तबाज होंगे, क्योंकि जब बाप रास्तबाज है ना तो बच्चे भी रास्तबाज होंगे। खून में ये चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। खुदा ने इस्राइल में 12 कबाइल में से जो कबीले को बरकत दी, उन्होंने खून च बरकत डिलीवर हो गई। तो जिस पर लानत की थी उनके खून में लानत डिलीवर हो गई थी। जनरेशन टू जनरेशन बाय द ब्लड सेल्स, ब्लड के सेल्स में लानत आ जाती है, ब्लड के सेल्स में बरकत आ जाती है। आप अपने बच्चों के अंदर, यहां आने वाली नस्लों के अंदर क्या डिलीवर कर रहे हैं? लानत या बरकत? बरकत सिर्फ यीशु मसीह के साथ चलने से है। दुनिया की कोई हस्ती यीशु के अलावा बरकत दे ही नहीं सकती। अगर आप ज़ाहरी चीज़ों से या पैसों से समझते हैं कि ये बरकत है, तो मैं ये समझता हूँ बरकत इससे बढ़कर है। ये बरकत है, लेकिन यीशु मसीह इससे ज़्यादा आपको बरकत ठहराना चाहता है। कोई आपसे मिले तो वो जान जाए कि आ खुदा दा बंदा जे यीशु दियां गल्लां करदा वे ओही गल्लां ओही काम जिहड़े यीशु जी सन। नज़र तो आए।
इसलिए चर्च में बैठकर, सिर्फ चर्च में बैठकर रास्तबाज ना बने, क्योंकि रास्तबाजी का अमल या अमली मुजाहिरा जो आपने करना है वो आपने चर्च से बाहर जाकर करना है। हालेलुया। कोई आपके साथ गलत करता है तो कभी खुदा आपको बरकत दे, तकिया कलाम बना ले, खुदा आपको बरकत दे। कोई आपके साथ बुरा बोलता है, भाई खुदा तेन बरकत दे, तकिया कलाम बना लें। इस कलीसिया को लोग क्रिश्चियन टाउन के अंदर जाने, आप जहां जहां पर जाए लोग आपको जाने कि भाई आते बरकत ही देंदे जे, आप बरकत देने वाला चर्च जे। हालेलुया। आप बरकत देने वाले लोग हैं, इसलिए जहां जहां पर जाएं, जहां जहां पर आप रहते हैं, आप बरकत दें दूसरों को, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है। नो मुनादी भी करदा सी, सिर्फ कश्ती च केली नहीं सी ठोकदा रहिंदा, वो मुनादी भी करदा सी, वो कहंदा सी ओ भा तूफान आने वाला जे। आज पादरी मुनादी कर रहे हैं कश्ती च, खुदावंत के खेत में काम करते हो, पाजी असी अपनी कश्ती तो बचा रहे हैं, अपने घराने नूं तो बचा रहे हैं, उन्हां लई ते असी काम कर रहे हैं, लेकिन यीशु तुहाडे लई भी अच्छा मनसूबा रखदा भाई। अपने बच्चों में तो कलाम को डिलीवर कर रहे हैं, अपने बच्चों में सिर्फ कलाम डिलीवर करके तो सर के नीचे तकिया रख के लेट ना जाए कि अब मैं आसमान पर जाकर अच्छी जगह पर चला गया हूं। अपने नाल किसी ना किसी को लैके जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ये चाहता है, फिक्र करें लोगों की, अपने बच्चों की, उन लोगों की जिनके लिए खुदावंद ने आपको चुना है। आपके पास मौका है। नूह की मुनादी बड़ी थी या यूना की? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। लोग कहते हैं नूह की मुनादी बड़ी थी, नूह ने तो अपना खानदान सिर्फ बचाया, तो यूना ने पूरा शहर बचा लिया। तरसीस नूं गया सी, जाना किथे सी? नैनवा नूं। पैसे ला के वीजा वूजा लैके तो उन्हें कहा चलो अमरीका, इत्थे नहीं मुनादी करनी, तरसीस नूं भज जाओ, छड्डो इत्थे की करना, इत्थे की लभना। एवें लोग बच जाणगे, उत्थे जाके अपनी लाइफ सैट करने। खुदा किहड़ा अमरीका पहुंच सकदा? जो तरसीस पहुंच गई तो अमरीका भी पहुंच जाएगा। हालेलुया। उन्हें कैनेडा भी पहुंच जाना जे, वो सारा कुछ दुनिया उहदी हदूद च। अगर तुहानूं लगदा कि पाकिस्तान च खुदा ने तुहानूं गुरबत च रखिया तो अमरीका भी टुर जाओगे तो गुरबत च कोई खुदा तो है ही नहीं तुहाडे नाल। अगर खुदा आपके साथ है तो फिर यहाँ पर भी बरकत है। हालेलुया। पाकिस्तान में भी बरकत हासिल की जा सकती है, अमेरिका च नहीं, कनाडा में नहीं। मुझे इत्तेफाक हुआ है कुछ कंट्रीज में जाने का, लेकिन मैं खुदावंद से कहता हूँ खुदावंद मैं जॉब के लिए सिर्फ विजिट करने जाऊँगा, तो मैंने पता मेरी खिदमत उत्थे नहीं। और इंग्लिश च लैक्चर सुनाते, जर्मन जुबान च, मैं जितना भी सीख लूँ ना, गोड़े जितनी भी उर्दू सीख लेना, हम हमारी तरह नहीं बोल सकते उर्दू पंजाबी, ना उसको समझ सकते हैं। हम जितनी भी इंग्लिश रट्ठे मार लें, जाके लिख लिख के उथे कलाम सुना लिए, लेकिन हमारी मुनादी यहीं पर है। मैंने बहुत सारे पादरियों को अफसोस के साथ वहाँ पर अमेरिका कनाडा के अंदर सुना है, लोगों को देखा भी है, वीडियोस भी उनकी आती हैं। वहाँ पे वर्कशॉप के ऊपर जो गाड़ियाँ धो रहे हैं, फ्यूल पंप के ऊपर जो है वो फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर फ्यूल भर रहे हैं, फिर हॉट एंड कूल बेच रहे हैं। घरे में बड़ा सा ट्रे डाल कर हॉट एंड कूल ले लें बीचेस के ऊपर। एंड दे वर गुड प्रीचर हियर, उनकी खिदमत यहाँ पर थी, वहाँ पर जाकर खिदमत ख़त्म हो गई, तो जब वापस आए तो इतने भी मुक गई, क्योंकि खुदा ही साथ नहीं रहा, खुदा नाराज़ हो गया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस हस्ती को नाराज़ ना करें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ें। वो ये नहीं चाहता कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसके साथ चलें, 2 4 5 तवार गिरजे आओ जिन जज लोगों का अलमिया बने कि 4 बहुत आया सा, खुदा ने मोटरसाइकिल दी तो हम जो तक वजेगी नहीं वापस नहीं आना, लैके हो गया शूटर ही, उन्हें नहीं परतना। अब बदरूआ सन, बदरूआ निकल गया, तो जे हुण 7 गुना वापस ना लियावा तो मैनू किन्ने आखना ही मसीही, मैं नहीं वड़ना हुण गिरजे। तो क्या करते हैं?
ये सिर्फ अपने लालच के लिए खुदावंद के पास आना, खुदावंद में भरना नहीं है। रिश्ता अज़दवाज करें, सिर्फ लालच के साथ खुदावंद के हुजूर ना आए। और ये सारी चीज़ें आपको इनाम में देना चाहता है।